Assalamu alaikum dear students and welcome. Today we are going to start lecture 16, new chapter, cells, tissues, organs and systems. So in this chapter we will study about cells, and when cells join together they will form tissues. When tissues join together they will form organ, and when organs arranged then they will form systems. So let's start our lecture. Here I have some. So our topic is about different cells for different functions. Different cells जो वो different functions perform करते हैं, like nerve cells. Nerve cells are responsible for the conducting of nerve impulse to all parts of the body. नर्व सेल जो हैं ये ब्रेन से मैसेज लेके तमाम ऑर्गन्स तक जाते हैं और वहाँ का मैसेज ब्रेन तक लाते हैं. RBC मीन रेड ब्लड सेल. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी circulation of oxygen around the body. And plant guard cells, these are plant cells and these are responsible for the opening and closing of stomata in plants. Fat cells, these are responsible for the storage of fat in body. So here we have different shapes of cells which are responsible. Different cells here, different cell shapes are, and these different cells perform different functions. So now we will see from cells to tissues. When different cells which are performing the same functions put together they will form tissues. एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो टिश्यूज़ बनाएंगे. Within multicellular organisms, cells of the same type are usually arranged in groups or layers to form tissues. Every cell in tissue carries out the same type of function. For example, every muscle cell in a muscle tissue makes the muscle contract to cause the body movement. अगर हम बात करें मसल सेल्स की तो मसल टिश्यूज़ के अंदर तमाम मसल सेल्स होंगे जो कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी या मूवमेंट ऑफ बॉडी का काम करेंगे. सो हेयर वी हैव मोर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़. Some animal tissues are designed, for example muscle tissues. These responsible for the contraction and cause the body movement. आपके जितने भी मसल टिश्यूज़ हैं आपके लेग्स में, आर्म्स में जो मौजूद हैं, ये तमाम आपकी बॉडी में भी मौजूद हैं और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी मूव करेगी. नर्व सेल्स, दीज आर ब्रेन सेल्स and these are responsible for the carrying messages from one part of the body to another part. Like हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चीज़ होगी या कोई भी मैसेज होगा, ये नर्व सेल वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. सो एपिथेलियल सेल, ये जो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ ये पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होते हैं और ये बॉडी की स्ट्रक्चर को कवर रखते हैं. हेयर वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज़ विच इंक्लूड बोन, कार्टिलेज एंड फैट. कनेक्टिव का मतलब है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. Here these are the animal tissues and these are the plant tissues. Some plant tissues are supporting tissues. ये plant को support करते हैं. plant आपको जो सीधा खड़ा हुआ नज़र आता है वो just because of these tissues. And photosynthetic tissues, plant जितने भी अपनी food तैयार कर रहे हैं, those plants are producing their food just because of photosynthetic tissues. These tissues carry out or do the photosynthesis for plant. photosynthetic tissues की वजह से plant photosynthesis कर पाता है. So here we have more examples like epidermal tissues. These tissues protect plant against any injury and drying out of its inner parts. ये एपिडर्मल टिश्यू एक स्किन का काम करते हैं प्लांट में और प्लांट को इंजरी से सेव रखते हैं. एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ जिनको जाइलम एंड फ्लोएम भी कहा जाता है, ये प्लांट के अंदर फूड और जितना भी वाटर स्टोर होता है उसको प्लांट की रूट से एरियल पार्ट्स लाइक प्लांट्स के रूट से लीव्स तक लेके जाते हैं और लीव से रूट तक लेकर आते हैं. सो अब हम देखेंगे किस तरह से एक टिश्यू ऑर्गन बनाता है. फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन. जब डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यूज़ इन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर बॉडी फंक्शंस. लाइक अगर हम बात करें स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनीज़, लिवर, बोन्स, मसल, स्किन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये तमाम जो हैं ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं. हार्ट के अंदर तमाम वो मसल्स होंगे जो हार्ट का जो पंपिंग का काम करेंगे, जो ब्लड को पंप करेंगे पूरी बॉडी में. लंग्स जो है ये हमारा बॉडी का वो ऑर्गन है जो प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड करता है. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. लंग्स के अंदर तमाम वो मसल्स होंगे, तमाम वो टिश्यूज़ होंगे जो प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं. स्टमक जो है ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. तो स्टमक के अंदर वो तमाम टिश्यूज़ होंगे जो हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे. सेम लाइक डैट इंटेस्टाइन, लीवर, किडनीज़, बोन्स,
इन तमाम ऑर्गन्स के अंदर वो तमाम टिश्यूज़ होंगे जो इनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मोस्ट एनिमल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। एनिमल्स के ज़्यादातर ऑर्गन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं और सम अदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, और कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के बने होते हैं। स्टमक कंटेन मेनली ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर ये 3 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। ग्लैंडुलर जो कोई ना कोई जूस क्रिएट करते हैं, मस्कुलर जो मूव करवाते हैं, और कनेक्टिव जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। हार्ट हमारा जो है वो कंसिस्ट करता है मस्कुलर, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। आप देखें अभी बात की है कि ज़्यादातर ऑर्गन्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो इस मीन्स डैट हमारा स्टमक और हमारे जो हार्ट है इनमें कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं। ईच ऑर्गन कैरी आउट वन और मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन। हर जो ऑर्गन है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक लीवर प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करेगा, स्टमक डाइजेशन का काम करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड and stomach for digestion. The liver carries out number of different functions such as storage of food, digested food and purification of blood. So ये different किस्म के functions हैं जो different organ perform करते हैं. So let's see on page number 183. Here we have plant organs such as leaves, stems, roots and flowers. जिस तरह से एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह से प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं। प्लांट्स के ऑर्गन को लीव, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स कहा जाता है। ईच प्लांट ऑर्गन, जिस तरह से एनिमल के ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से प्लांट के ऑर्गन भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लीव्स जो हैं वो फूड मेकिंग का काम करते हैं। स्टेम वाटर डिजॉल्व मिनरल को मूव करवाते हैं रूट से लीव्स तक, और इसी तरह से एंड स्पोर्टिंग टिश्यूज़ जो है वो प्लांट को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। सो दिस इज़ योर today's lecture. You will learn question answers of this chapter from your given notes of science. Till then, next lecture. Allah Hafiz.